Now come to the second chapter, that is electrostatic potential and capacitance. In this chapter, our first topic is potential difference. Potential difference. This one is my first topic in this chapter. Now, I think all of you are very familiar with the term potential difference. ये टॉपिक को आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे. तो फर्स्ट कम टू नो द लिटरल डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ we can define the potential difference as the amount of work done in bringing the unit positive test charge from one point to another point when both points lies in the region of electric field developed by any, or we can say developed by certain point charge. Here we take the point charge with positive sign, like plus Q. Very clear now? So this one is the literal definition, and I think this definition we have already learned in class 10. The amount of work done in bringing the unit positive test charge from one point to another point means I have the 2 points, and when both points lies in the region of electric field. Right now? So now, how can we further illustrate the potential difference on the basis of this literal definition? For this, we take a point O in the plane, right? At this point, I just put up the positive point charge. This one is my point charge. This one is my point charge, right now. Positive point charge. Now this positive point charge must develop a region. This one is the region, suppose. This one is the region. राइट ना. एक्चुअली ये रीजन जो है इसका अपना इन्फ्लुएंस है, इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, राइट ना. तो इस रीजन को हम बोलते हैं द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना. दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बोल रहा है वी टेक 2 पॉइंट्स व्हेन बोथ पॉइंट्स लाइज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम यहाँ पे इस रीजन में कहीं भी 2 पॉइंट लेंगे, राइट ना. Suppose I take the point A and here I have the point B. These are my 2 points, right? Now suppose at the point B we take the test charge. It's very important, test charge. हम यहाँ पे एक test charge लेंगे, that is my Q0. Q0 is my test charge. Test charge is nothing but my experimental charge, है ना. इसको हम बोलेंगे माउस चार्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सब चूहा पर होता है, तो हम इसको चूहा चार्ज भी बोल सकते हैं. वेरी क्लियर ना. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहां से टेस्ट चार्ज को हम कैरी करके हम ऐसे ले आ सकते हैं, ऐसे ले आ सकते हैं. मेरा एम है इस टेस्ट चार्ज को कैरी करके ए पर लाना, बी से ए पर लाना. अच्छा, पाथ कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एक पाथ है, ये पाथ, ये भी पाथ हो सकता है, ये मेरा सेकंड पाथ, ये भी पाथ हो सकता है. दिस वन इज माय थर्ड पाथ, राइट ना.
पाथ कुछ भी हो सकता, राइट। तो फाइनली मेरा एम है कि टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना, दिस इज माई फाइनल, राइट। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। तो जब हमें टेस्ट चार्ज को कैरी करके बी से ए लाएंगे, राइट ना, व्हेन आई जस्ट ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो हमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द टेस्ट चार्ज शुड बी कैरी ऑन वेरी स्लोली फ्रॉम बी टू ए, राइट ना। बी से ए तक लाने में जो टेस्ट चार्ज को हम ला रहे हैं बी टू ए, दैट शुड बी कैरी ऑन विद अ स्लो मोशन, ऐसे द टेस्ट चार्ज should bring from B to A, from B to A very slowly, very slowly. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको समझना पड़ता है, वेरी स्लोली, राइट ना। अच्छा, अगर ये स्लोली मूव करेगा तो क्या हो? तो ड्यू टू स्लो मूवमेंट द स्पीड is constant. Constant मतलब same. Speed must be same. अगर स्पीड सेम हुआ तब तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी also become same, also same. काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। अब स्पीड के कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन of test charge must be zero. Very clear now? So these are the important points while defining the potential difference. Very clear? These are the important points while defining the potential difference. Right now? Very clear now? Now see, here the force is conservative force. Basically this is my electrostatic force. Electrostatic force is conservative force, and whenever the force is conservative, then the work done must be independent of the path. वर्क डन मेरा पाथ के इंडिपेंडेंट होगा, मतलब हम बी टू ए जो वर्क कर रहे हैं, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, चाहे इस पाथ से, वो मेरा सेम। दैट इज द वर्क डन फ्रॉम द फर्स्ट पाथ, इट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम द सेकंड पाथ, मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम द थर्ड पाथ। वेरी क्लियर ना? लेकिन और यहाँ पे एक और बात है, अगर बी से ए हम वर्क डन करेंगे और ए टू बी वर्क डन करेंगे, पूरा एक लूप करेंगे, लूप में वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड देन अगेन फ्रॉम बी टू ए, एंड वर्क डन मस्ट बी जीरो होगा। वेरी क्लियर ना? ठीक है, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो दिमाग में रखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी डू द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स with the help of external agent. So we do the work with the help of external agent, with the help of external agent against electrostatic force, Now वर्क अगेंस्ट का सिग्निफिकेंस फिजिक्स में होता है, राइट ना? वेरी क्लियर। नाउ कम टू हाउ कैन वी एक्सप्रेस द पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकली। अब हम चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बी से ए ला रहे हैं, वेरी क्लियर। तो नाउ वी कैन से वी ए माइनस वी बी, राइट ना? और बी से ए लाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी होगा, तो वी ए माइनस बी बी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन हम कैसे कर रहे हैं? बी टू ए कर रहा है, तो बी टू ए
divided by the test charge. So this is actually the expression of potential difference. Very clear ना? Potential difference. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर B to A वर्क डन होगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस A to B, एंड दिस इज माई पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर हुआ? नाउ कम अबाउट द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. Now say, in the numerator I have the work. In the numerator we have the term of the work. तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है. जूल हो गया. और डिनोमिनेटर में मेरा चार्ज, चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो या टेस्ट चार्ज हो, हर चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है. तो इससे मेरे को यूनिट क्या मिला? जूल पर कूलम. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट जूल पर कूलम, then identify the physical quantity. So we can easily identify that is nothing but my potential difference. Clear ना? ठीक है. Now come to the next topic, that is my electric potential. Again, first we come to know about the literal definition of electric potential, and that is nothing but the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a certain point lies in the region of electric field, in the region of electric field, right? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पर, राइट ना? सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट वो लिया. एट दिस पॉइंट आई टेक द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. दिस वन इज माई पॉइंट चार्ज. एक मेरा पॉइंट चार्ज है, राइट ना? क्लियर? अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? फिर से एक रीजन को डेवलप करेगा, और वो रीजन क्या होगा आपको पता ही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन. दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, राइट ना? अब इस रीजन में हमने एक पॉइंट यहाँ पे ए लिया. एक पॉइंट तो हमें लेना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के विद इन हो, और एक पॉइंट हम लेंगे जो इस रीजन के बाहर होगा. और सपोज दिस पॉइंट लाइज एट इन्फिनिटी. वेरी क्लियर ना? बात समझ में आए? अब इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे, दैट इज माई क्यू नॉट. एट दिस पॉइंट वी टेक द टेस्ट चार्ज. ये मेरा टेस्ट चार्ज है. दिस वन इज माई टेस्ट चार्ज. क्लियर? और फिर से हम ये टेस्ट चार्ज को हम ब्रिंग करके ला रहे हैं ए टू बी, राइट ना? यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम टेस्ट चार्ज को हम ब्रिंग करेंगे बी टू ए तो स्लो मोशन में होना चाहिए, वेरी स्लो. यहाँ से धीरे धीरे करके ला रहे हैं, राइट ना? ठीक है. इसका स्पीड चेंज नहीं करना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, राइट? वेरी क्लियर. चल, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ potential difference, अभी हमने क्या फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था? दैट इज VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय टेस्ट, राइट ना? अब आप यहाँ पे देखो, B मेरा इन्फिनिटी पर है, राइट ना? B इज एट इन्फिनिटी. यहाँ कुछ एग्जम्पशन आ रहा ना, तो B इज एट इन्फिनिटी. B मेरा इन्फिनिटी पर है, राइट? B इज एट इन्फिनिटी.
or we can say V tends to infinity. When V tends to infinity, then V at infinity tends to 0. Very important point. तो ये मेरा यहाँ पे एग्जाम्पशन है. So while defining the electric field, we take some assumption, and with the help of potential difference, now we come to the conclusion. Right? हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का तो हेल्प लेना ही है, और ये एग्जाम्पशन का भी हेल्प लेना है. राइट ना. अब ये एग्जाम्पशन को हम यहाँ पे लाइज कराते हैं. ये इक्वेशन मान लो 1 है. दिस वन इज माय फर्स्ट इक्वेशन. राइट. तो अब हम कैसे लाइज कराएंगे? नाउ सी. तो VA minus VB, and V lies at infinity and V infinity is 0, that is 0, equal to W external agent. फिर यहाँ पे B की जगह पर क्या रखेंगे? infinity to A divided by Q naught, right? That is VA equal to work external agent infinity to A by Q naught, and this is the expression of the electric potential. This is the expression of electric potential. Very clear now? ठीक है. इसका ऐसा यूनिट वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा. ऐसा यूनिट इज ऑल्सो जूल पर कूलम. राइट. नाउ कम अबाउट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. राइट ना. द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Dimension of electric potential or potential difference. Now see, in the numerator I have the work, and work is equivalent to energy, and the dimension of energy is ml square t minus 2. Very simple, I think. And in the denominator I have the charge. Now I can formulate the dimension of charge on the basis of the definition of the electric current. Electric current is expressed as Q by T. ये होता है. यहाँ से अगर मैंने Q निकाला तो हो गया I into T. Right? I can express Q as the product of electric current and time. Now the dimension of the current is ampere and time is my capital T. So this one is the dimension of the charge. So in the denominator I have the dimension AT. Very clear now. Now see. So finally I conclude the dimension of electric current as m L square T minus 3 A minus 1. So this is the dimension of electric potential. Clear now? Now come to the very important topic. And the topic is how can we derive the electric potential at a point due to positive point charge. Yeah, any charge, any point. Now come to the topic, electric potential at a point due to point charge. Right now. Now for this, we take a point O. At this point, we take a positive point charge. Right here, our charge is point charge is positive here. Now this positive point charge must develop the electric field, and the direction of electric field is outward. Very clear? Along the direction of electric field, I have the direction of electrostatic force also. Clear now? We take a point P, which is situated at a distance R from O. Now my aim is to find out the electric potential at this point, because P is my experimental point here. Right? यही मेरा point है. किसी point पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है, डराइव करना है. तो we take two another points A and B. These two points lies very close to each other. ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के काफी क्लोज है. And suppose the separation is also very small, and that is my D. The point B is situated at a distance x from O. Right? The point B is situated at a distance x from O. Now point P, A and B, all 3 points lies in the region of electric field. Electric field. Right now?
lies in the region of the electric field. We take the last point C, and this point lies at infinity. Lies at infinity. At this point, we take the test charge. इस पॉइंट पर हमने टेस्ट चार्ज लिया, राइट. मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये टेस्ट चार्ज को मैंने यहां पे ले आया, राइट. तो लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज एट B. कहाँ पे है? B पर है. मान लो यहाँ पे आ गई, राइट. अब मेरा B पॉइंट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में है. द पॉइंट B लाइज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तब तो ये पॉइंट चार्ज और ये टेस्ट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. वेरी क्लियर ना. एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ कूलम. That is 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by पॉइंट B का सिचुएशन सोर्स से कितना x है. That is my x पर. I mean to say कि ये पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन x है. यहाँ पे x पर आएगा. ठीक है, क्लियर. तो दिस वन इज माई कूलम्बिक फोर्स. वेरी क्लियर ना. अब मेरा एम क्या है? तो टेस्ट चार्ज को B से A तक लाना थ्रू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, राइट ना. हम B से A तक लाएंगे और ये सारा प्रोसेस में चार्ज को हम धीरे धीरे लाएंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. चार्ज को हमें धीरे धीरे लाना है ताकि इसका स्पीड कांस्टेंट हो, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो. क्लियर ना. ठीक. तो नाउ द स्मॉल अमाउंट, एक स्टेटमेंट आएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, हैज टू बी डन in bringing the test charge Q naught from B to A through small displacement dx against the electrostatic force. यहाँ वर्क डन हमेशा अगेंस्ट होगा बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट हैज सिग्निफिकेंस इन फिजिक्स, राइट. क्लियर है. तो चलिए अब हम बात करते हैं. इस फिगर को हम रब कर देते हैं, राइट ना. फिगर को दिमाग में रखिएगा. क्लियर यहाँ तक. तो हमने देखा फोर्स मेरा क्या था, F इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, राइट. और हमने अब क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क किया, दैट इज माई DW. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा. तो नाउ DW इज F डॉट dx होगा. मैंने यहाँ पे डॉट क्यों लगाया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिफाइन द स्केलर क्वांटिटी, राइट. अब आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आउटवर्ड है और जो dx डिस्प्लेसमेंट मेरा इनवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. जब भी दो वेक्टर के बीच में डायरेक्शन, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तब तो एंगल दोनों के बीच में क्या आएगा, 180 डिग्री. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे F dx cos 180 डिग्री, राइट. तो वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1. अब इससे मेरा ये एक्सप्रेशन हो गया -F dx. क्लियर है. अब f की जगह पर ये एक्सप्रेशन को पुटअप करेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, -1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx. दिस इज माई d. वेरी क्लियर ना. ये मेरा DW है. ठीक है. चल अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए टोटल वर्क. तो टोटल वर्क हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे ला रहे हैं, पॉइंट P पर ला रहे हैं. तो वी हैव टू डू द टोटल वर्क. नाउ द टोटल वर्क डन
total work done in bringing the test charge from infinity to P is given as that is my W. टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स मेरे को ये बताता है कि अगर हम स्मॉल क्वांटिटी से बिग क्वांटिटी पर आएंगे तब एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट ना. तो नाउ हियर आई हैव द इंटीग्रेशन साइन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई x स्क्वायर dx होगा बिल्कुल. देखो फिजिक्स में मेरे को ये बोलता है कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी होना चाहिए, राइट. तो अब हम लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टेस्ट चार्ज मेरा इनिशियली कहाँ पे था. तो टेस्ट चार्ज इनिशियली मेरा इन्फिनिटी पे था, तो लोअर लिमिट हो गया इन्फिनिटी. लोअर लिमिट हम डिसाइड करेंगे इनिशियल सिचुएशन. इनिशियल सिचुएशन कहाँ पे था, मेरा इन्फिनिटी पे था. एंड फाइनली मेरा टेस्ट चार्ज कहाँ पे आया था, पी पॉइंट पर आया था. और पी पॉइंट का सिचुएशन ओ से कितना था, आर था, तो अपर लिमिट हो गया आर. वेरी क्लियर ना. इस तरह से हम इंटीग्रेशन का लिमिट्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. क्लियर है, समझ में आई बात. अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है. तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ये मेरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से हम बाहर करते हैं. तो नाउ W becomes my, I can take the constant out of the integration. -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ये बाहर आ गया. अब इंटीग्रेशन के अंदर में बचा क्या टर्म्स, तो dx/x स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी टू आर आया, राइट. नाउ सी दिस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्क्वायर, राइट. इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्क्वायर इज -1/x. ये मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा. तो चलो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और मेरा इस फंडामेंटल फार्मूला का हेल्प से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और इन द प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट -1/x, एंड हियर आवर लिमिट इज r टू इन्फिनिटी. वेरी क्लियर ना. देखो माइनस और माइनस मिलके पॉजिटिव हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट. अब यहाँ पे बचा 1/x, और यहाँ पे r, यहाँ पे इन्फिनिटी. वेरी क्लियर ना. एक्चुअली r और इन्फिनिटी यहाँ पे x का दो वैल्यूज है. r इज अपर वैल्यूज, इन्फिनिटी इज लोअर वैल्यूज. तो अब हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करेंगे. तो पहले अपर वैल्यूज को पुट अप करेंगे, फिर लोअर वैल्यूज को पुट अप करेंगे, और दोनों के बीच में साइन नेगेटिव माइनस. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, फिर 1/r -1/n, राइट ना. अच्छा मैथ्स में आपने पढ़ा है कि 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है. अगर मैं इन्फिनिटी और 0 को इंटरचेंज कर दूं तो 1/इन्फिनिटी टेंड्स टू 0 होगा, राइट. उससे मेरा 1/इन्फिनिटी का वैल्यू 0 हो गया. अब बचा क्या, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R आया, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ माई टोटल वर्क डन. वेरी क्लियर ना. टोटल वर्क डन. नाउ आई थिंक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे एक्सप्रेस करें. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, right, we can define the electric potential as P. Our point is P. तो P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था. is the work done by the external agent from infinity to the point P. यहाँ पे मेरा पॉइंट P है, by the test charge. क्लियर ना. तो वर्क डन हमने टोटल निकाल लिया, ये मेरा वर्क डन है. दिस इज माई वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, राइट. तो हम इसके जगह पर इसको रखेंगे. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R आया, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में Q नॉट है, तो 1/Q नॉट कैंसल आउट. तो V at P becomes by 1/4 pi epsilon naught Q by R. So this is the expression of the electric potential at the given point P. This one is my electric potential.
यही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट ना। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को देखने से मेरे को कंक्लूजन निकलता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है और देख लो सी हियर, मेरा पोटेंशियल और आर कैसे कोरिलेटेड है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, राइट ना। अब इनवर्सली रिलेशन में क्या होता है, अगर R मेरा इंक्रीज करेगा तब तो V मेरा डिक्रीज करेगा, दिस इज माय इनवर्स रिलेशन। और अगर R मेरा डिक्रीज करेगा तब तो V मेरा इंक्रीज करेगा। वेरी क्लियर ना। चलो ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ग्राफिकल एनालिसिस पर। ग्राफिकल एनालिसिस वेरी क्लियर। तो चलो यहाँ पे दो ग्राफ है। पहला ग्राफ, on the x-axis I take R, on the y-axis I take V। तो ग्राफ मेरा कैसा बना, V और R में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ग्राफ इज लाइक दिस, एक पहला ग्राफ आया, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ क्या आ रहा है, मान लो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। y एक्सिस पर मैंने V लिया और x एक्सिस पर 1/r लिया, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे आएगा, ये मेरा स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट ना, ये मेरा स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, अब इस दोनों ग्राफ के बेसिस पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो देखो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे रखा है, मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज, वी हैव द 2 पॉइंट चार्ज, Q1 एंड Q, राइट। यहाँ पे मेरा 1/r और यहाँ V, ऑन द y एक्सिस V है और ऑन x एक्सिस 1/r है, तो V वर्सेस 1/r ग्राफ। एक चार्ज के लिए मेरा ग्राफ ऐसा है, Q1 चार्ज के लिए, और दूसरा चार्ज के लिए ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट ना, ये मेरा Q1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच चार्ज इज पॉजिटिव and which one is negative. Which charge is positive or negative, ऐसा सोचो, ठीक है। क्वेश्चन राइज करता है which charge is positive or negative। तो चलो देखते हैं। एक्चुअली हमें पता है कि V का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, राइट ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/r, ऐसे लिख सकते हैं, राइट ना। अब ये 1/r को लाके डिवाइड कर देते हैं, ऐसा आ गया, तो यहाँ पे आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। अब ये मेरे को क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन मेरे को स्लोप बता रहा है। स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, द फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस टू द फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, दैट इंडिकेट बाय स्लोप, ठीक है, क्लियर। अब ये स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब Q मेरा पॉजिटिव होगा। अब स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब Q मेरा नेगेटिव, क्योंकि ये मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है, राइट। द स्लोप इज हियर, द स्लोप इज द नेचर ऑफ द स्लोप, और वी कैन से द स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज की, ठीक है। स्लोप को डिसाइड करने के लिए चार्ज का नेचर क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां से मेरे को कंक्लूजन निकला कि Q1 का जो स्लोप है, यहां देखो Q1 चार्ज का जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, नेचुरली Q1 बड़ा पॉजिटिव होगा, और Q2 चार्ज का जो स्लोप है वो मेरा नेगेटिव है, इसलिए Q2 मेरा नेगेटिव होगा। वेरी इजी, आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, राइट ना, क्लियर, थैंक्स।